Good morning, children. I'm Lakshmi Kaushik from Army Public School, Meerut, Kent. Today I'm going to take the chapter for the secondary level, and the name of the chapter is What is Economics? After when I start my presentation and in between, if any of the child you want to ask me the question, you can put in the chat box so that I can see your questions and I'll answer according to that. बच्चों, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो आप अपने क्वेश्चंस चैट बॉक्स पे डाल दीजिए और मैं चैट बॉक्स से आपके क्वेश्चंस पढ़कर आपके आंसर्स दूंगी। लेकिन कोशिश करना कि जब मैं एक प्रेजेंटेशन खत्म करूं, यानी कि एक स्लाइड खत्म करूं, उसके बाद आप क्वेश्चंस पुट ऑन करें। सो नाउ वी आर स्टार्टिंग विद द चैप्टर व्हाट इज इकोनॉमिक्स। व्हेन वी टॉक अबाउट इकोनॉमिक्स, economics is a subject which is very important in the field of social science because, or we can say that, it is the worldwide in demand subject. In everyday life, we talk about so many concepts early morning regarding the goods, the demand, market, supply. And nowadays, when you early morning you when you pick up the newspaper, you see the prices of certain commodities as gold, silver, petrol, diesel that is increasing. Then we go for certain banks to withdraw the money or deposit the money. All these concepts in everyday life is related to the subject economics. So I'm showing it with the help of a presentation. Just see. So economics as a subject has assumed great importance in the field of social science. In our day-to-day life, we use a lot of economic concepts such as goods. I told you, goods, those things what you require every day in your life. वो सारी चीजें, वो सारी वस्तुएं जिन्हें आप रोज इस्तेमाल करते हैं, वो गुड्स। मार्केट, जहां से आप खरीद कर लाते हैं। डिमांड, जिनकी आपकी जो चीजों की आपकी जरूरतें हैं, यानी कि बेसिक नेसेसिटीज, दैट इज डिमांड। सप्लाई, दुकानदार आपको बेचता है। प्राइस, कीमतें। इन्फ्लेशन, कुछ कमोडिटीज की प्राइसेस साल में कई बार बढ़ जाती हैं, दैट लीड्स टू इन्फ्लेशन। बैंकिंग, बैंक की सर्विसेज। टैक्स, विच इज टेकन बाय द गवर्नमेंट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। लेंडिंग, किसी को पैसा उधार देना। बोरोइंग, किसी से पैसा लेना। Either it can be from the individual persons or it can be from the bank at the rate of interest, यानी कि एक ब्याज दर पर। The objective of teaching this chapter, that is, we are going to cover three things in this chapter. One, the meaning of economics, the branches of economics, and the difference between the positive and normative economics. Now, the first is, when I talk about the meaning of economics, economics is a vast subject. It covers so much scope and area of the economy that to give a precise definition is not possible. Economics इतना vast subject है कि वो इतना area और scope cover करता है कि उसकी एक संक्षिप्त व्याख्या देना बहुत मुश्किल है। इसलिए वक्त के साथ साथ जैसे जैसे टाइम बदलता गया, सिविलाइजेशंस चेंज होती चली गई, और वैसे वैसे इकोनॉमिक्स ने अपना एक अलग सब्जेक्ट का वजूद पकड़ा और उसी हिसाब से अलग अलग स्कॉलर्स उस समय के अलग अलग डेफिनेशन देते चले गए। With the development of time and civilization, the definition of economics has undergone modifications and change. So the first definition, it was given in late 18th and 19th century. Classical economists, they believed that the science is economics is related with the wealth, or it is a science of wealth. The classical economist Adam Smith has given this definition, and he was also called as father of economics because he was the first person to write a complete book on economics as an inquiry into the nature and causes of wealth of nation, which was published in 1776. So Adam Smith gave the definition as economics is a study of nature and causes of wealth
of nation. The classical economist deals that economic, they viewed that the economics deals with the phenomenon of wealth, that is the nature, causes of wealth, creation of wealth with the individual persons as well as nations. The next definition was given by Alfred Marshall, a neoclassical economist, that is called as science of welfare. एल्फ्रेड मार्शल ने सोचा कि वेल्थ डेफिनेशन में सिर्फ वेल्थ की बात की गई, यानी कि दे डू नॉट टॉक अबाउट द पीपल, उन्होंने किसी भी इंसान के बारे में या ह्यूमन बीइंग के बारे में बात नहीं की, उन्होंने सिर्फ वेल्थ की बात करी। यानी कि वेल्थ है तो वो रिच है, वेल्थ नहीं है तो वो रिच नहीं है। यानी कि वेल्थ के बेसिस पर इकोनॉमी या सोसाइटी दो ग्रुप्स में बढ़ गई, poor section and rich section. They do not talk about the welfare of the people. So, the Alfred Marshall has given his definition as welfare definition, given as economics is the study of mankind in the ordinary business of life. So, it is the study of mankind, that is related to the people in his ordinary life, how he lives. On one hand, it is the study of wealth, and on the other and most important side, it is the study of man. On one side, he deals with the wealth, and the other side, we study about the man. Now, Marshall says that wealth is important, but it is a mean to fulfill our requirements, not an end. अपने आप में वेल्थ कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक जरिया है हमारी चाहतों को, हमारी जरूरतों को पूरा करने के लिए। So when I talk about the welfare, when I come out about the welfare, so welfare are of two types. We can say that it is in both the aspects, quantitative as well as qualitative. When I talk about quantitative, it is the consumption of goods and services. वो सारी वस्तुएं जो हम रोज इस्तेमाल करते हैं, and per capita income, that is my earnings. तो ये है quantitative aspect of welfare. वेलफेयर तब तक नहीं है जब तक मेरी कोई कमाई ना हो, और वो कमाई जब तक मैं खर्च ना करूं तब तक वेलफेयर कैसे होगा। तो दैट इज माय क्वांटिटेटिव वेलफेयर। व्हाई आई एम यूजिंग द वर्ड हियर क्वांटिटेटिव, क्यों? क्योंकि ये मॉनेटरी टर्म्स में है। मॉनेटरी टर्म्स होने की वजह से ये मेजर किए जा सकते हैं, यानी कि हम इन्हें कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट कम्स क्वालिटेटिव वेलफेयर। क्वालिटेटिव वेलफेयर क्या है कि मैं सुकून की जिंदगी काटूं, मैं खुशहाल जीऊं। दिस इज क्वालिटेटिव वेलफेयर, जिसे हम मेजर नहीं कर सकते। मैं कितनी खुश रहती हूँ, मैं कितना एंजॉय करती हूँ अपनी लाइफ में, मैं कितना घूमती फिरती हूँ, तो ये सब चीज़ें मेरे को खुश रखना भी बहुत ज़रूरी है। तो क्योंकि जब मैं खुश रहूँगी तो मेरी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, बट इन ये क्वालिटी है, इट कैन नॉट बी मेजर्ड। सो once again, he has talked about only the quantitative aspect. Welfare here we are taking as only the qualitative aspects of the welfare. The next definition is given by the next definition is given by that is Lyndon Robbins. He is a modern economist, and it is called as scarcity definition, or the science of scarcity and choice. Now, these modern economists, they thought that the welfare definition, it was related only with the material aspects of welfare. What is material aspects of welfare? That is quantitative aspects of welfare. वो quantitative aspect जिन्हें हम calculate कर सकते हैं क्योंकि उनकी monetary value है। भाई मैंने कितने रुपए खर्च करे अपने कंजम्पशन पर, मैंने कितने रुपए कमाए, ये सब मेजर किए जा सकते हैं। तो ये क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स हैं। लेकिन पीपल इन मॉडर्न सिनेरियो दे नीड्स बोथ द थिंग्स, दे नीड material goods also, they need non-material goods also. When I talk about material goods, these are all the goods what I use in my day-to-day life, and when I talk about non-material goods, that includes all the services. Now, since resources available with the individuals and the society are scarce, and people try to achieve by using the alternative methods or using the alternative uses of these resources, so they have to make appropriate choices. Once again,
Since resources available with the individuals and society are scarce, when I talk about scarce यानी कि वो हमारी ज़रूरतों के हिसाब से कम है, और जब वो हमारी ज़रूरतों के हिसाब से कम है तो पीपल ट्राई करते हैं, यानी कि लोग ट्राई करते हैं कि किसी तरह से वो अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सके। और कैसे करेंगे अपनी ज़रूरतों को पूरा कर कर? अल्टरनेटिव चॉइसेस कर कर, यानी कि वो एप्रोप्रिएट चॉइसेस बनाएंगे कि क्या चीज़ लेनी चाहिए, क्या चीज़ नहीं लेनी चाहिए। तो लायन एंड रॉबिन्स ने अपने शब्दों में इसे डिफाइन करा है, इकोनॉमिक्स इज साइंस which studies human behavior as a relationship between ends and scales means which have alternative uses. लाइनन रॉबिन्स ने कहा कि उनकी इकोनॉमिक्स जो है वो इकोनॉमिक्स जो है दैट इज रिलेटेड विद ह्यूमन बिहेवियर। ह्यूमन बिहेवियर क्या है कि वो रिलेशनशिप बनाता है अपनी ज़रूरतों में और अपने रिसोर्सेज के बीच में, रिसोर्सेज जो स्केयर्स भी हैं और उनके ऑल्टरनेटिव यूजेस भी हैं। नेक्स्ट स्लाइड में आपको हम स्कैर्सिटी डेफिनेशन से रिलेटेड कुछ टर्म्स एक्सप्लेन करेंगे। सो आफ्टर एनालाइजिंग द स्कैर्सिटी डेफिनेशन we come through certain points. One, this definition says that economics is a science which studies human behavior. Human behavior क्या है? इंसान की आदतें, इंसान क्या फितरत, उसे हर चीज चाहिए, उस वो अपनी सारी चीजें चाहता है, चाहे वो मटेरियलिस्टिक हो या वो नॉन मटेरियल हो, वो सब चीजें चाहता है। लेकिन सब चीजें चाहना और उनको फुलफिल करना आसान काम नहीं है। द नेक्स्ट वर्ड वी हैव स्टडीड इन डेफिनेशन इज एंड्स। एंड्स का मतलब है वॉन्ट्स। वॉन्ट्स का मतलब है मेरी जरूरतें। जरूरतें इंसान की डिजायर्स की तरह हैं, इच्छाओं की तरह हैं। जैसे इच्छाओं के पर नहीं हो, पर लगे होते हैं, जितना भी चाहता है उतनी उसकी अनलिमिटेड इच्छाएं बढ़ती चली जाती हैं। एक फुलफिल कर पाता है तो दूसरी बढ़ जाती है, दूसरी फुलफिल कर पाता है तो तीसरी बढ़ जाती है। तो एंड्स इंप्लाई वांट्स which are unlimited in nature because human desires are unlimited. अगर आज मुझे आज के प्रेजेंट सिनेरियो में मुझे लग रहा है कि कंप्यूटर बहुत ज़रूरी है क्योंकि ऑनलाइन सेशंस के लिए, तो कल मैं चाहूँगी और हाई टेक्नोलॉजी का कंप्यूटर मिल जाए। अगर मैं उसे फुलफिल कर पाऊंगी तो कुछ समय के बाद फिर चेंज हो जाएंगे, मैं फिर चेंज चाहूँगी। तो इंसान की इच्छाओं का कोई भी अंत नहीं है, और वही इच्छाएं उसकी धीरे धीरे ज़रूरतों में कन्वर्ट होती चली जाती हैं। और जैसे जैसे वो एक इच्छा को पूरी करता है तो दूसरी इच्छाएं आ जाती हैं। जैसे एक एग्जांपल आपको देती हूँ। अभी सब बच्चों ने हमारे ब्रेकफास्ट कर लिया। ब्रेकफास्ट करने के बाद कुछ ही घंटों के बाद उन्हें लंच चाहिए और फिर कुछ घंटों के बाद डिनर चाहिए। अब एक ही डिमांड ऑफ फूड आप देखिए दिन में 3 बार रिपीट हो जाती है, और कई बार तो छोटा मोटा स्नैक्स तो हम बीच में यूं ही खाते रहते हैं। सो एक डिमांड पूरी हुई नहीं, दूसरी डिमांड खड़ी हो जाती है। हम फूड की डिमांड करते नहीं कि हमें अब किताबें भी चाहिए, हमें लैपटॉप्स भी चाहिए, मोबाइल्स भी चाहिए, क्योंकि आजकल ऑनलाइन क्लासेस चल रही है, हमें किताबें भी चाहिए, हमें कॉपियाँ भी चाहिए, एवरीथिंग। तो एक चीज खत्म होती नहीं उतनी और दूसरी चीजें खड़ी हो जाती हैं। नेक्स्ट इज वी हैव मीन्स विच इम्प्लाई रिसोर्सेज। मीन्स का मतलब है रिसोर्सेज, यानी कि जरिया। अब हमारे रिसोर्सेज क्या है कि मेरी खाने की, किताबों की, लैपटॉप की, मोबाइल्स की, इन सब की जरूरतों को पूरा करने के लिए मेरे रिसोर्सेज क्या है? मेरी इनकम जो कि लिमिटेड है। अब ऐसा तो होता नहीं कि हमें तनख्वाह अनलिमिटेड मिलती है, या ये कह दिया जाता है कि आप कितना भी तनख्वाह ले लो, आप अपनी ख्वाहिशें पूरी कर लो। ऐसा नहीं होता बेटा। पहले हमें तनख्वाह मिलती है और उन्हीं तनख्वाह में हमें अपनी ज़रूरतें पूरी करनी पड़ती हैं। तो दैट तनख्वाह, दैट इज़ रिसोर्स, दैट इज़ मीन्स, और वो है लिमिटेड। और मेरी जो ख्वाहिशें हैं उनकी कंपैरिजन में वो स्केर्स है, यानी कि उसकी शॉर्टेज है। मेरी इच्छाएं अनलिमिटेड हैं, मेरे को उन इच्छाओं को पूरा करने के लिए मेरे पास जो रिसोर्सेज हैं, वो तनख्वाह वो कम है, इसीलिए वो स्केर्स बन गई। उसके अलावा मेरे जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, यानी कि जो मेरी तनख्वाह है, वो सिर्फ खाने के लिए नहीं बनी, सिर्फ कपड़ों के लिए नहीं बनी, सिर्फ मेरे लैपटॉप या मोबाइल्स खरीदने के लिए नहीं बनी। उसके ऑल्टरनेटिव यूजेस भी हैं। मुझे अपना फ्यूचर भी सिक्योर करना है, अपने बच्चों का फर्दर भविष्य भी बनाना है, मुझे इन्वेस्ट भी करना है, मुझे अपने बुढ़ापे के लिए
जोड़ना भी है, तो many things are there what I have to fulfill right now in the present scenario. तो मुझे choices करनी पड़ेंगी कि मैं भविष्य के लिए पहले सोचूं या प्रेजेंट के लिए सोचूं। अगर मैं प्रेजेंट पे पैसा ज्यादा खर्चा करूंगी तो भविष्य के लिए नहीं बचेगा, और भविष्य के लिए ज्यादा जोड़ लूंगी तो प्रेजेंट कैसे जीऊंगी। तो आई हैव टू मेक द चॉइसेस, और यही चॉइस करना इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स है। तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स इसलिए अराइज होती हैं, क्यों? क्योंकि स्केर्सिटी है। मार्शल ने कहा था कि स्केर्सिटी इज द रूट ऑफ ऑल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, बिकॉज सॉरी लैंडन रॉबिन्स ने कहा था स्केर्सिटी इज द रूट ऑफ ऑल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, क्योंकि अगर स्केर्सिटी नहीं होती तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स नहीं होते, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स नहीं होते तो शायद हम ये आज चैप्टर या किताब ना पढ़ते। Next is, I'll take you one more example for this. That is, the next example is that I have taken an example of two goods here. I'll show you. I have taken an example of two goods, that is the production of cloth and the production of wheat. अब मैं अपने रिसोर्सेज से या तो प्रोडक्शन ऑफ क्लोथ और वीट बराबर कर लूं, यानी कि अपने रिसोर्सेज को इस तरह से बांट लूं कि वीट कल्टीवेशन भी कर सकूं और क्लोथ्स भी बना सकूं, यानी कि कपड़े भी बना सकूं। दोनों के लिए मैं रिसोर्सेज बराबर डिवाइड कर लूं। लेकिन अगर 1% भी वीट का कल्टीवेशन बढ़ाना पड़ा, यानी कि डिमांड ऑफ वीट बढ़ गया, तो ऑटोमेटिकली मुझे प्रोडक्शन ऑफ क्लोथ से अपने रिसोर्स डाइवर्ट करने पड़ेंगे, किस पर? प्रोडक्शन ऑफ वीट पर। या अगर क्लोथ्स की प्रोडक्शन बढ़ जाती है, डिमांड बढ़ जाती है मार्केट में, तो उसका प्रोडक्शन बढ़ाना है तो मुझे वीट के प्रोडक्शन से रिसोर्सेज डाइवर्ट करने पड़ेंगे प्रोडक्शन ऑफ क्लोथ्स के लिए। यानी कि कोई भी चीज बढ़े मुझे डाइवर्ट करना पड़ेगा अपना प्रोडक्शन। सो हियर you can have a look. Take the production of two goods, clothes and wheat. We cannot produce both the goods in unlimited amount with limited amount of resources. हम दोनों को बेइंतहा क्वांटिटी में प्रोड्यूस नहीं कर सकते हम, क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज क्या है? लिमिटेड है। एंड रिसोर्सेज को हम दोनों में बराबर डिवाइड कर दें तो प्रोडक्शन हो सकता है, या फिर एक का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए if the production of cloth has to be increased, then the resources will be withdrawn from the production of wheat because resources are limited। यानी कि मेरी अपनी ऊपर की एग्जाम्पल से दो कंसेप्ट आते हैं, या तो मैं दोनों चीजें बराबर प्रोड्यूस करती रहूं इकोनॉमी में, लेकिन अगर वीट की डिमांड मार्केट में बढ़ेगी तो मुझे प्रोडक्शन वीट का बढ़ाना पड़ेगा, और उसको बढ़ाने के लिए मुझे रिसोर्सेज जो प्रोडक्शन ऑफ क्लोथ पे रखें उन्हें डाइवर्ट करना पड़ेगा उधर भी। हम कोई भी रिसोर्सेज की बात कर सकते हैं, इट इज नॉट ऑलवेज मनी ओनली, वी कैन टेक लेबर ऑल्सो। नाउ लेबर्स आर प्रोड्यूसिंग वीट ऑल्सो, लेबर्स आर मैन्युफैक्चरिंग क्लोथ्स ऑल्सो, दैट इज प्रोडक्शन ऑफ क्लोथ्स भी कर रहे हैं। अगर मैं लेबर्स प्रोडक्शन ऑफ क्लोथ्स बढ़ाऊंगी तो मुझे वहां ज्यादा लेबर्स की जरूरत पड़ेगी, तो मैं लेबर्स कहाँ से लाऊं? क्योंकि मेरे पास लिमिटेड नंबर ऑफ लेबर्स हैं इकोनॉमी। labor's limited. Why I'm talking about labor limited? When you think that the population of the country is so vast, why the labors are limited? The people who are willing to work, we can count them as a labor, वो है limited जो काम करने के लिए तैयार है। तो वीट में जो लेबर काम कर रहे हैं उन्हें मैं फिर डाइवर्ट करूंगी कहाँ? कि वो क्लोथ्स प्रोड्यूस करें। लेकिन अगर वीट का कल्टीवेशन बढ़ेगा तो मुझे क्लोथ से डाइवर्ट करने पड़ेंगे वीट कल्टीवेशन के लिए। तो ऑटोमेटिकली दोनों या तो सेम अमाउंट में प्रोड्यूस हो सकते हैं, या एक की प्रोडक्शन बढ़ने से दूसरा प्रोडक्शन घटाना होगा, रिसोर्सेज लिमिटेड है। So this definition I have made clear given by Lionel Robbins. You can have a look once again of the Lionel Robbins, what he have said, that given economics is the science which studies human behavior as a relationship between ends. I have told you what are ends, and scales means which have alternative uses. Now come to the next definition, that is growth definition, science of growth and development. Now, when I talk about the science that is of growth and development, we have seen till now in all the three definitions of wealth, welfare, and scarcity.
So we have seen three things in that. In wealth definition, we have talked about the wealth, that is the nature. Then in welfare definition, we have talked about the welfare of the people. That is, only wealth is not everything in the economy, it is only a mean to satisfy the requirements of the people. So we should talk about the welfare of the people. So wealth definition becomes welfare definition. Then after the welfare definition, in welfare definition we have seen that it has sticked to, or it was talking about only the material welfare. Material welfare, that is the quantitative aspects of the welfare which can be measured. Which cannot be measured was not taken by the welfare. So now next was scarcity's definition, that was given by Lyman Robbins. He said that taking the welfare, wealth, and in both the concept, the choices has to be made by the person to satisfy all his requirements by making appropriate choices. Now, at the present scenario that we are talking about in the 20th century, that the objective of 20th century is to get the growth and development of the entire economy. It is not sticked to a decision making of an individual person or the society. Now it is dealing with the development of the whole economy. तो अब गवर्नमेंट का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल आ गया कि गवर्नमेंट हैज़ टू प्ले अ वेरी इम्पोर्टेंट रोल बिहाइंड इट. सो now, no longer the economics relate to the choices making by the individual persons of the society. Now the scope has expanded to the production and consumption of commodities over time so that the economy achieve growth and development. So modern economists, they have given in 20th century the economics as the definition of science of growth and development, or we can say as the growth definition. Given by P.A. Samuelson, he was the modern economist. He has given the definition as economics is the study of how men and society choose. I have taken both the things here. That is the individual person as well as the society. Choose with or without the use of money. That is the quantitative and the qualitative aspects, both I have taken. To employ scarce productive resources, that is making choices which could have alternative uses to produce various commodities over time and distribute them for consumption. Now it is for the whole economy, now or in near future, among different people and groups in the society, because it is dealing with the growth and development of the whole economy. So it is related with the distribution, consumption and production. So to achieve higher level of growth and development, to achieve higher level of growth and development, economies around the world have been exploiting natural resources and polluting the environment. अब इस होड़ में कि हमें ग्रोथ और डेवलपमेंट चाहिए, तो अब क्या होने लगा कि इकोनॉमी अपने ही रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करने लगी और पॉपुलेशन पॉल्यूशन बढ़ता चला. तो अपने आप में हमने क्या करा, ग्रोथ लाने के लिए, डेवलपमेंट लाने के लिए we are exploiting our own resources and polluting the environment. Consumption of goods and services resulted in the wastage of resources. So now the time rises to think about the future generation. It is not only relating with our development, our growth, that we have to utilize all the resources with ourselves at the present time. Now we are supposed to think about the development of the future also. That means some subsoil resources what we are using nowadays, in the pace what we are using, जिस रफ्तार से हम subsoil resources इस्तेमाल कर रहे हैं, minerals, mineral oils, coal, etc. तो जिस रफ्तार से हम इस्तेमाल कर रहे हैं, उस रफ्तार से तो कल की जनरेशन उन्हें देख भी नहीं पाएगी. तो बहुत ज़रूरी है कि हम
अब आने वाले फ्यूचर के बारे में सोचें। तो 4 डेफिनेशंस वी हैव डन। 1 वेल्थ डेफिनेशन, जिसमें हमने नेचर को वेल्थ माना और वेल्थ से रिलेटेड चीजें पढ़ी। वेलफेयर डेफिनेशन, जिसमें हमने वेल्थ को कहा कि वेल्थ इज नॉट एवरीथिंग, it should talk about the welfare of the people, so we have studied welfare definition. After that, because welfare was related to only quantitative aspects, so we came to the scarcity definition, that is making appropriate choices so that we can fulfill material and non-material uh, requirements. Material, when I talk about it, is the goods, and when I talk about non-material, it is services. Then after that, we came to the development of the whole economy. So we were focusing on the production, consumption, and distribution. And later on, we realized that doing the growth and the development of the economy, we started exploiting our own resources and polluting the environment. Now, after the development, we have realized that now the resources should be utilized judicially, efficiently, and ensure that the welfare of our future generation. So the present definition in the present scenario is the sustainable development definition, called as science of sustainable development. Now, because we are the part of the open economy, or we can say we are opting the globalization, so our problem do not stay with the own country. It has become the problem for the whole world. Everyone in the world, every country is running behind the development and the growth of their economy, and not looking after the environment. So UNO World Commission on Environment and Development, they have given a definition of sustainable development is development that meets the needs of the present without compromising the ability of future generation to meet their own needs. तो उन्होंने कहा कि आप अपनी प्रेजेंट रिक्वायरमेंट्स, अपनी प्रेजेंट नीड्स फुलफिल करिए, लेकिन कॉम्प्रोमाइज ये नहीं है कि आप फ्यूचर जनरेशन के लिए कुछ ना छोड़ें। अगर आपको रिसोर्सेज मिले हैं अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, तो आप उन रिसोर्सेज को आप जुडिशियली, एफिशिएंटली इस्तेमाल करें, जिससे कि आने वाली जनरेशन को वो रिसोर्सेज बचे मिले। So these are the 5 definitions with the change in the scenarios what we have done. Now we will take the next topic. Anyone who wants to ask me can put their questions in the chat box so that I can give you the answers from all the 5 definitions what we have done. The wealth definition in late 18th and early 19th, that was given by the classical economist. Then we have done the welfare definition. Then we have done the welfare definition given by the neoclassical economist. Then we have done the scarcity definition given by the modern economist. And after that, we have done the growth and development definition. Again, it was by the modern economist. Now, at the present scenario, we all countries in the world are working for maintaining the environment, that is sustainable development. That is, we have to sustain our environment. In order to develop, we have to use our resources in such a way so that the coming generation can also take the benefit of those resources. If anyone wants to ask me, should I move to the next topic? Yes. So there are no questions till now, so I should move ahead. The next question is the branches of economics. The branches of economics. Now, when I talk about the branches of economics, the economic subject itself is divided into two. One, it talks about only the individual persons. It talks about only the individual persons. In individual persons, when I talk about, तो अब तक जितने भी हमने टॉपिक मैक्सिमम सस्टेनेबल डेवलपमेंट और डेवलपमेंट ग्रोथ तक देखे, वो सब इंडिविजुअल थे। तो इंडिविजुअल क्या है कि अपने बारे में, कंज्यूमर अपने बारे में सोचे,
प्रोड्यूसर अपने बारे में सोचे, मार्केट अपने बारे में सोचे, तो हर लोग अपने बारे में सोचे, यानी कि मैं क्या खरीदती हूँ, मैं क्या खाती हूँ, मेरी क्या डिमांड है, मेरी क्या ज़रूरतें हैं, तो ये सब मेरे अपने इंडिविजुअल है, इट इज़ नॉट रिलेटेड विद द होल इकोनॉमी। और दूसरी तरफ अगर हम देखें तो एक और ब्रांच है जिसमें हम पूरे देश के बारे में बात करते हैं। When I talk about the word inflation, the inflation is not related to only me. Inflation is the problem of the whole economy. Everyone is suffering from that because प्राइस का बढ़ना अच्छा तो है, लेकिन जरूरत से ज्यादा प्राइस का बढ़ना अच्छा नहीं है, क्योंकि प्राइस के बढ़ने से तनख्वाह तो बढ़ती है, लेकिन जरूरत से ज्यादा प्राइस बढ़ने से बर्डन सारा मेरे ऊपर आ जाता है, तो इट इज नॉट गुड फॉर द होल इकोनॉमी। सो एवरीवन इज सफर्ड फ्रॉम इन्फ्लेशन। एम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम मेरी अकेली की नहीं है, वो पूरे देश की समस्या है। अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम सारी देश की समस्या। तो हमने सब्जेक्ट को दो में डिवाइड कर दिया, एक बना दिया जिसमें इंडिविजुअल्स हैं और एक में बना दिया जिसमें पूरी इकोनॉमी है। तो पहला ब्रांच है दैट इज कॉल्ड एज माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब है कि इकोनॉमिक्स को बहुत छोटे लेवल पे पढ़ना। बहुत छोटे लेवल पर पढ़ना यानी कि सिर्फ अपने बारे में सोचना। मैंने आपको एक पिक्चर दिखा रखी है, उसमें देखिए एक बंदा डिजायर कर रहा है अपने बारे में। एक बच्चा बैठा है और वो सोच रहा है कि मैं बड़ा होऊंगा तो मेरे पास इतना इतनी मेरी अर्निंग होगी, एक घर होगा, एक अच्छी नौकरी होगी, एक अच्छी गाड़ी होगी, एक अच्छी गृहस्थी होगी। ही इज थिंकिंग ऑल अबाउट हिमसेल्फ, यानी कि बहुत स्मॉल लेवल पर है। एक इंडिविजुअल बहुत छोटी चीज है पूरी इकोनॉमी के लिए। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब है एक बहुत छोटे लेवल पर अब कंसेप्ट्स को पढ़ना। तो इट डील्स विद द इंडिविजुअल कॉन्सेप्ट्स, इट डील विद द इंडिविजुअल कॉन्सेप्ट्स। इंडिविजुअल कॉन्सेप्ट्स होता है डिमांड ऑफ अ कंज्यूमर से रिलेटेड है, यानी कि व्हेन आई टॉक अबाउट डिमांड ऑफ अ कंज्यूमर, अब अगर मैं डिमांड ऑफ अ कंज्यूमर की बात करती हूँ तो डिमांड ऑफ अ कंज्यूमर क्या है कि in order to satisfy various wants an individual buy goods and services। मैं अपनी wants को fulfill करने के लिए कई सारी चीजें खरीदती हूँ, और कई सारी चीजें कैसे खरीद रही हूँ, कुछ सर्टेन प्राइस पर। मैं अनलिमिटेड फिर नहीं खरीद सकती, लिमिटेड खरीद सकती हूँ। तो मैं कोई भी चीजें खरीदूं तो अपने आप में क्या खरीद रही हूँ, लिमिटेड चीजें खरीद रही हूँ, क्योंकि मेरे पास लिमिटेड इनकम है। तो मैं अगर दुकानदार से कोई सामान खरीदूंगी तो पहले मैं उससे प्राइस पूछूंगी, फिर अपनी पर्स देखूंगी या अपना वॉलेट देखूंगी कि मेरे पास कितनी तनख्वाह, कितना पैसे हैं, जिससे मैं अपनी डिमांड पूरी कर सकूँ। तो दैट इज डिमांड ऑफ अ बायर। उससे पूरी इकोनॉमी इफेक्ट नहीं होती है, उससे सिर्फ मैं इफेक्ट होती हूँ। अगर आज के समय में आम बहुत बिक रहे हैं, अगर मैं बाजार गई हूँ और मैंने उससे कहा है कि आम कितने रुपए किलो है, तो अगर उसने 40 रुपए किलो बताया तो मैंने पहले पैसे पूछे, फिर मैंने अपने वॉलेट चेक करा या अपना पर्स चेक करा। अगर मेरे पास 100 रुपए निकल आते हैं तो ओके, आई कैन गो अहेड फॉर कितने ले सकती हूँ, 2.5 किलो ले सकती हूँ। तो मैं डिसाइड करूंगी अपनी क्वांटिटी कैसे, प्राइस को और उसको देखकर। तो दैट इज जस्ट रिलेटेड टू माई इंडिविजुअल डिसीजन कि मैंने पैसे और अपने प्राइस अपनी इनकम को देखकर डिसाइड करा कि मुझे कितना आम लेना चाहिए। अगर उसके पास आम के साथ बनाना भी था तो फिर मुझे फिर चॉइसेस करनी पड़ेंगी। अगर मैं बनाना खरीदूंगी तो आम कम करने पड़ेंगे, और मैं आम ज़्यादा पसंद करती हूँ तो बनाना कम करने पड़ेंगे। तो वो सारे डिसीजंस मेरे इंडिविजुअल के हैं, इसीलिए वो डिमांड ऑफ अ कंज्यूमर है और माइक्रो इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट है। Come to the supply of a producer, एक और एग्जाम्पल। When I talk about the supply of a producer, तो प्रोड्यूसर खुद डिसीजन ले सकता है कि वो कितनी कीमतों पर एक चीज को बेचे। क्यों? क्योंकि उसे मुनाफा कमाना है। मैंने तो चॉइसेस करनी थी क्योंकि मुझे सेटिस्फेक्शन ज्यादा चाहिए था, उसे प्रॉफिट ज्यादा चाहिए। तो वो अपने प्रॉफिट को पाने के लिए किस प्राइस पर बेचना चाहेगा, कितनी क्वांटिटी, ये उसका खुद का डिसीजन है। certain commodities price fixations are there which is done by the government, लेकिन बाकी के दुकानदार उसे अपनी मर्जी से कर सकते हैं।
थोड़ा सा मैनिपुलेशन प्राइस में चलता है। क्यों? क्योंकि दे आर people who have to work, who are earning profit, and to earn profit a bit manipulation can be done in the prices. तो वो डिसाइड करेंगे कि कितनी कीमतों पर कस्टमर मुझे पैसे दे सकते हैं, बार्गेनिंग करेंगे। फिर भी वो बार्गेनिंग करने के बाद भी अपना मुनाफा खत्म नहीं करेगा, उसके हिसाब से अपने चीजों को बेचेगा। तो दैट इज सप्लाई ऑफ अ प्रोड्यूसर। अगेन इट इज अ डिसीजन ऑफ अ सिंगल प्रोड्यूसर, एक सेलर का अपना डिसीजन। नेक्स्ट कम्स प्राइस ऑफ अ कमोडिटी। प्राइस ऑफ अ कमोडिटी अगर हम बात करें तो ये मार्केट में डिसाइड होता है। मार्केट कहाँ? जहाँ बायर एंड सप्लायर्स मिल जाए। अब सोचो हम एक ठेले पे खड़े हैं, आम बेचने वाला है और मैं आम खरीदने वाली हूँ, बन गया बार मार्केट। अब वहीं पे डिसाइड हो जाएगा कि क्या प्राइस है। अब दुकानदार ने कहा कि 40 रुपए मैंगो बिकेंगे और मैंने उसे कहा कि नहीं 20 रुपए में दे दो या 30 रुपए में दे दो। जहां भी सेटलमेंट हो जाए मेरी बार्गेनिंग और उसका, यानी कि मैं सेटिस्फाई हो जाऊं खरीदने में और उसका मुनाफा भी ना खत्म हो, और जहां हम डिसाइड कर रहे हैं कि चलो फाइनली दुकानदार ठेले वाले ने कहा चलो 30 रुपए में ले लो, तो 30 रुपए क्या बन गया? प्राइस ऑफ अ कमोडिटी। इट इज डिटरमाइंड विद द टू मार्केट फोर्सेस, डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड मैं कर रही थी, सप्लाई ठेले वाला कर रहा था, और एक जगह डिसाइड हो गया कीमतें। और इस तरह से कीमत किसकी डिसाइड हुई? सिर्फ मैंगो की। तो प्राइस डिटरमाइन होती है सिर्फ एक इंडिविजुअल कमोडिटी की, और इसीलिए क्योंकि एक इंडिविजुअल कमोडिटी की प्राइस डिटरमाइन हुई है तो इसीलिए फिर ये एक बन गया माइक्रो इकोनॉमिक्स कॉन्सेप्ट। अगर हम प्रोडक्शन यूनिट में बात करें तो प्रोडक्शन यूनिट्स में मेथड ऑफ प्रोडक्शन बहुत जरूरी है। दे हैव रिसोर्सेज विद देम, they have land, labor, capital, entrepreneur, everything. That is the factors of production with them. अब उनके फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में दो चीजें काम करती हैं और दो चीजें सिर्फ इन्वॉल्वमेंट है। जैसे अगर हम बात करें लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, लैंड इज यूटिलाइज्ड ईदर फॉर द कल्टीवेशन और बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। अगर मेरी बिल्डिंग है लैंड के ऊपर तो वो हो गया एक फैक्टर। तो लैंड इटसेल्फ इज नॉट वर्किंग, उस पर मेरी फर्म खड़ी है तो लैंड इज ऑलरेडी यूटिलाइज्ड इन दैट प्रोडक्शन यूनिट। नाउ an entrepreneur, he do not work directly, he make the other factors of production work. Now what is left? That is labor and capital. तो प्रोडक्शन यूनिट डिसाइड करेगी कॉम्बिनेशन कैसे बनाए, यानी कि वो लेबर और कैपिटल से काम चलाना है, और लेबर और कैपिटल को यूज कर कर प्रोडक्शन बढ़ाना है, मुनाफा भी बढ़ाना है और उनकी लागत भी कम होनी चाहिए। यानी कि अगर वो प्रोडक्शन बढ़ाना चाहते हैं, दे वांट टू इंक्रीज द प्रोडक्शन, तो इंक्रीज करने के लिए उन्हें लेबर बढ़ाना है या कैपिटल बढ़ाना है, लेकिन उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज्यादा नहीं होनी चाहिए क्योंकि उन्हें मुनाफा कमाना है। तो इन ऑर्डर टू अर्न मोर प्रॉफिट दे हैव टू मेक द लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन सो दैट दे अर्न प्रॉफिट। तो कॉम्बिनेशन कैसे बनाएंगे? तो कॉम्बिनेशन कैसे बनाएंगे? या तो लेबर का या कैपिटल का। अगर लेबर ज्यादा लेंगे तो कैपिटल कम करनी पड़ेगी, और अगर कैपिटल ज्यादा लेंगे तो लेबर कम करनी पड़ेगी। तो लेबर और कैपिटल के बेसिस पर उन्हें डिसीजन लेना होता है। अगर वो लेबर ज्यादा यूज करते हैं और मशीनों का कम इस्तेमाल करते हैं तो उसे हम कहते हैं लेबर इंटेंसिव टेक्निक, यानी कि यूसेज ऑफ लेबर इज मोर देन मशीन्स। और अगर हम बात करें कि वो मशीनों का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं कंपैरेटिव टू लेबर, दैट इज कॉल्ड एज कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। लेकिन एक चीज क्लियर करना चाहूंगी कि ज्यादातर बच्चे ये समझते हैं कि जैसे मैंने एग्जांपल लिया लेबर ज्यादा मशीन कम, जैसे खेतों में अगर वर्कर्स ज्यादा हैं यानी कि फार्मर्स ज्यादा हैं तो एक ट्रैक्टर से काम चल जाता है। तो ज्यादातर बच्चों के दिमाग में क्या आता है कि कैपिटल इंटेंसिव का मतलब क्या है? मशीनें ज्यादा और आदमी कम। ये पॉसिबल नहीं है बेटा। बेशक हम इंडस्ट्रीज में ज्यादातर प्रोडक्शन करते हैं मशीनों से ज्यादा और लेबर से कम। लेबर से कम का मतलब ये नहीं कि 100 मशीन एक लेबर, क्योंकि मैंने वहां कहा था 100 लेबर एक मशीन, ऐसा नहीं है। यानी कि वहां सरप्लस लेबर नहीं होंगे। उन 100 मशीन को ऑपरेट करने के लिए 100 लेबर तो होंगे लेकिन 101 नहीं। वाई द सरप्लस लेबर? So that is what I'm talking about. When I use more capital and less labor, that means less labor here is, that is surplus labor should not be there. It should be the only the quantity of that labor जितना वो मशीनों को हैंडल कर
तो दो मेथड हो गए, कैपिटल इंटेंसिव, लेबर इंटेंसिव। वो किसी भी मेथड को इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे उनका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या है बेटा? वो है लागत, जो पैसा प्रोडक्शन करने में लगता है उसे कहते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, और जिस पर वो बेचते हैं उसे कहते हैं रेवेन्यू, और इन दोनों का डिफरेंस हो जाता है मुनाफा, दैट इज प्रॉफिट। अगर उनका रेवेन्यू यानी कि वो जो सामान बेच रहे हैं जिस कीमत पर, वो रेवेन्यू है, और अगर रेवेन्यू ज्यादा है कंपैरेटिव टू कॉस्ट तो उन्हें मुनाफा है। अगर उनकी कॉस्ट ज्यादा हो गई, रेवेन्यू कम हो गया, तो उन्हें लॉस है। तो कोई भी प्रोडक्शन यूनिट लॉस नहीं चाहती, वो अपने कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इस तरह से बनाएंगे, कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, जिससे वो लीस्ट रहे और वो मुनाफा ज्यादा कमा सके। सो दीज आर सर्टेन एग्जांपल ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। Am I clear to everyone? Now come to the next. The next branch of economics is macroeconomics. When I talk about macroeconomics, so macroeconomics, it is dealing with the economy as a whole. पूरी इकोनॉमी की बातें करते हैं हम इसमें। इसमें इंडिविजुअल कॉन्सेप्ट्स नहीं है, यानी कि इसमें इंडिविजुअल कोई नहीं सोचता। इसमें जो भी सोचता है ज्यादातर भारत सरकार सोचती है। तो अपने आप में भारत सरकार डिसीजंस लेती है with the changes in the prices, with the developing the opportunities of employment, reducing unemployment. So certain steps are taken by the government to overcome different types of problem in the economy. And economy is facing different type of situations in the country. तो ये जितनी भी हम concepts पूरी economy से related पढ़ते हैं, वो सब macro economics के concepts हैं। तो macro economics concepts are, so when I talk about, it is the study of economy as a whole, यानी कि मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या पढ़ रही है? पूरी इकोनॉमी को एक साथ पढ़ रही है। कुछ एग्जांपल्स हम मैक्रो इकोनॉमिक्स के लेते हैं। जैसे यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं एग्रीगेट इनकम ऑफ इंडिविजुअल्स। एग्रीगेट इनकम लिया है बेटा। अब इकोनॉमी अगर मैं एज अ होल कह रही हूँ तो पूरा देश, देश का मतलब इंसानों को तो साथ लेगा ही ना वो देश। तो उसमें हम कैसे पढ़ते हैं मैक्रो लेवल पर, कि सब इंसान जो इंसान कमा रहे हैं उन सबकी इनकम को टोटल कर लो, जोड़ लो, तो वो बन जाती है एग्रीगेट इनकम या नेशनल इनकम ऑफ द कंट्री, और वो बन गया मैक्रो कंसेप्ट। फिर से बोल रही हूँ कि मैक्रो कंसेप्ट क्या है? इंडिविजुअल में हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ा मेरी तनख्वाह, मेरी तनख्वाह में मैं कितने आम खरीद सकती हूँ, कितनी कीमत पे खरीद सकती हूँ और सेटिस्फाई हो सकती हूँ। लेकिन व्हेन आई टॉक अबाउट मैक्रो इकोनॉमिक्स, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या है बेटा? सब इंडिविजुअल पर्संस की इनकम को एक साथ ले लें, एक साथ ले लेंगे तो वो अपने आप में क्या बन जाएगी? एग्रीगेट इनकम, और वो बन जाता है नेशनल इनकम। दूसरा हम लेते हैं इफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। हम दूसरा वर्ड भी पढ़ सकते हैं, जैसे अगर हम एग्रीगेट इनकम नहीं पढ़ रहे तो हम एग्रीगेट कंजम्पशन भी पढ़ सकते हैं। जैसे हम सब खर्च करते हैं, अभी मैंने भी आपको एग्जांपल दिया इंडिविजुअल लेवल पर कि मैंने खर्च करा आम पर, आपने खर्च करा बनाना पे, किसी ने खर्च करा ऑरेंजेस पे, तो सबने खर्च करा अलग अलग चीजों पे, लेकिन सबके खर्चे जब हम एक साथ ले लें तो वो बन जाता है एग्रीगेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तो सारे इंडिविजुअल्स इकोनॉमी में सारे लोग ही हैं, वो लोग क्या हैं? इंडिविजुअल्स हैं। उन इंडिविजुअल्स की कमाई भी है, उनके खर्चे भी हैं। अगर मैं इंडिविजुअल्स की कमाई को जोड़ूं तो वो एग्रीगेट इनकम बन जाती है, और अगर उनके खर्चों को जोड़ूं तो वो एग्रीगेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बन जाता है। तो दोनों मैक्रो कंसेप्ट बन गए। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पर एग्रीगेट ले लिया है, यानी कि सबको जोड़ कर ले लिया है। अब सबको जोड़ लूंगी तो सारे जोड़ कर क्या बन जाएगा? पूरा देश बन जाएगा। सारे लोगों को जोड़ूं तो बन जाएगा देश। तो पूरे देश के बारे में पढ़ना मैक्रो कॉन्सेप्ट्स है। नेक्स्ट इज इन्फ्लेशन। अभी आपको मैंने बताया कि इन्फ्लेशन क्या है। इन्फ्लेशन है राइज इन प्राइस, कीमतों का बढ़ना। लेकिन कीमतों का बढ़ना कुछ हद तक अच्छा, लेकिन साल में अगर 4-5 बार कीमतें बढ़ जाती हैं तो 4-5 बार तनख्वाह तो नहीं बढ़ती। सो इसीलिए उसका बर्डन किस पे पड़ता है? सारे लोगों पर पड़ता है। सो इन्फ्लेशन मैक्रो कंसेप्ट। अनएम्प्लॉयमेंट यानी कि बेरोजगारी,
बेरोजगारी का मतलब है कि रोजगार अपॉर्चुनिटीज सबको अवेलेबल नहीं है, यानी कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो उन्हें एम्प्लॉयमेंट नहीं है, तो उस सिचुएशन को हम कहते हैं अनएम्प्लॉयमेंट। और क्योंकि जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट नहीं हो पाती, और अगर होती हैं तो आपकी एबिलिटी और एफिशिएंसी नहीं है कि आप उन्हें अडेप्ट कर सकें, या आप स्किल्ड नहीं हैं, या आप ट्रेंड नहीं हैं, या आप विलिंगली नहीं करना चाहते एट द एग्जिस्टिंग वेज रेट, ये सब अनएम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड है। और ये पूरी देश की समस्या है, एक इंडिविजुअल पर्सन की नहीं। Next is population. When I talk about population, again, population is for the country. It is not for the a single family or a individual person. देश की आबादी बढ़ रही है, देश की आबादी, तो देश की आबादी बढ़ ही देश की आबादी है, तो it is a macro concept. Anyone who wants to ask micro and macro concepts, you may ask me. If no questions, I'll move ahead. You can see here, I have given a beautiful picture here of showing the difference between micro and macro. See how it works. So micro we have taken here individual person है, individual household है, production individual firm है, तो ये सब अपने आप में individuals हैं बेटा. See here. And when we come to the macro concept, it is GDP and GNP we are talking about. And I told you, for the whole economy, the government works. Government is not going to work for the individual aspects. The government is going to work only for the whole economy. If we have to remove the poverty, unemployment, the government is making so many poverty alleviation programs and job opportunities government is creating so that the unemployment and the poverty of the country reduces. So this is macro concept, because the government is working for the whole country. He is not providing a individual person a facility. So it is for the whole economy, so that the people are able to get the job and poverty is reduced. Now come to the next topic of this chapter, that is we have again different concepts of economics. ये दो कॉन्सेप्ट जो हम अभी पढ़ेंगे बेटा, पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव कॉन्सेप्ट्स ऑफ इकोनॉमिक्स, दीज आर इश्यूज. एग्जैक्टली व्हाट इट इज, इश्यूज. हम जब इकोनॉमिक्स की किताबें बनाते हैं या हम इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं, तो बहुत सारी पॉलिसीज, फैक्ट्स, रिलेशनशिप, बहुत सारी चीजें पढ़ते हैं. तो ये सारी जो चीजें हम पढ़ते हैं वो सब अपने आप में दो इश्यूज लेकर चलते हैं बेटा, एक पॉजिटिव और एक नॉर्मेटिव. पॉजिटिव इश्यूज क्या हैं? पॉजिटिव इश्यूज क्या हैं कि हम अगर किसी भी चीज को जैसा है वैसे ही एक्सेप्ट कर ले, वो है पॉजिटिव. और नॉर्मेटिव इश्यूज क्या हैं? जिनमें ओपिनियंस होते हैं लोगों के, अपने अपने ओपिनियंस. जैसे अगर मैं कहूं कि इंडिया की पॉपुलेशन ज्यादा है, हाँ, यू एक्सेप्ट इट, क्योंकि द डेटा इज गिवन. You can go through the surveys also. You can see the data on the internet, check it out. India is the most populous country after China. तो second most populous country है, तो population ज्यादा है. लेकिन अगर normative की बात करें तो government should try to reduce this population explosion of India. That means कि गवर्नमेंट को कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे पॉपुलेशन कंट्रोल हो जाए. तो ये ओपिनियन है लोगों का, हर इंसान अपने अपने ढंग से कहेगा कि क्या क्या करना चाहिए. तो कोई कहेगा कि गवर्नमेंट को फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम अडॉप्ट करवाने चाहिए, कोई कहेगा गवर्नमेंट को इंसेंटिव्स देने चाहिए जिनकी छोटी फैमिली है, कोई कहेगा कुछ. तो अपने अपने ओपिनियंस हैं. तो हमारे इकोनॉमिक्स में जब हम कोई भी पॉलिसीज, फॉर्मुलेशंस कुछ भी पढ़ते हैं तो उनमें दो इश्यूज होते हैं, एक जो जैसा है एक्सेप्ट कर लेते हैं, और एक जिसमें बहुत सारे कंट्रोवर्शियल्स या ओपिनियंस होते हैं. तो दोनों तरह की चीजों को मिलकर इकोनॉमिक्स बनी है. तो हम उसे दो कंसेप्ट्स में पढ़ते हैं बेटा, एक पॉजिटिव में और एक नेगेटिव में. जब हम बात करते हैं पॉजिटिव की, जैसे लॉ ऑफ डिमांड,
लॉ ऑफ डिमांड कहता है, लॉ ऑफ डिमांड कहता है कि जब भी कीमतें बढ़ेंगी डिमांड घटेगी। नॉर्मल है। किसी भी लेवल पर आप बात करें, चाहे लोअर इनकम की बात करें, मिडिल इनकम की बात करें या हायर इनकम की बात करें, हर इंसान की यही सोच है कि मैं ज्यादा से ज्यादा पैसे ना दूं और ज्यादा से ज्यादा सामान मिल जाए। यानी कि वो डिमांड ज्यादा करना चाहता है कम की है। अगर मैं ही अभी एग्जांपल लिया था मैंगो का और मैं कहूं कि अगर वो मुझे 20 रुपए में दे देता है, वो सो हैप्पी टू हैव इट। क्यों? क्योंकि मुझे 40 रुपए में 1 किलो दे रहा था, 20 रुपए में 1 किलो, यानी कि मैं 20 रुपए के हिसाब से होते 2 किलो ले लूंगा। तो ये नॉर्मल बिहेवियर है, एवरी वन वॉन्ट्स इट, एवरी वन, सो वी एक्सेप्ट इट। इसमें कोई कंट्रोवर्सी नहीं है कि तुम ऐसे क्यों हो, तुम ऐसा क्यों करते हो, नहीं है। एवरी वन फील्स गुड टू हैव मोर इन लेस इनकम और लेस प्राइस। तो लॉ ऑफ डिमांड ऐसे ही एक्सेप्ट कर लेते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं टैक्सेशन की, तो टैक्सेशन में बहुत सारे कंट्रोवर्सीज हो जाते हैं। एवरी स्कॉलर्स, फिलोसफर्स, ऑथर्स, दे हैव डिफरेंट इश्यूज कि टैक्स ऐसे लगना चाहिए था, टैक्स गरीबों पे नहीं लगना चाहिए था, टैक्स गरीबों पे भी लगना चाहिए था, टैक्स औरतों पे भी लगना चाहिए था। दे हैव डिफरेंट ओपिनियंस। तो नॉर्मेटिव भी साथ साथ चलता है, पॉजिटिव भी साथ साथ चलता है, दोनों मिलकर इकोनॉमिक्स में है। सो नाउ कम टू द टॉपिक व्हाट आई एम टेकिंग एज पॉजिटिव इकोनॉमिक्स. So positive economics is the branch of economics that concerns the description and explanation of economic phenomena. It focuses on facts and cause and effect, behavior relationship, and includes the development and testing of economic theories. ऐसा ही नहीं है कि आप कुछ भी एक्सेप्ट कर लो, यहाँ फैक्ट्स हैं, आप उनका प्रभाव भी दे सकते हो, यहाँ तक कि आप उन्हें चेक भी कर सकते हो, टेस्ट कर सकते हो कि जो हम बोल रहे हैं कि लॉ ऑफ डिमांड है देश में, लोग कीमतों के बढ़ने से कम खरीदते हैं, आप टेस्ट कर सकते हो। मार्केट में जाकर कभी भी सर्वे कर लो, किसी से भी बात करके देख लो, यू कैन टेस्ट इट, फैक्ट्स आर देयर। सो इसे हम कहते हैं पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में ज्यादातर क्या है, हम क्या बोलते हैं, इट इज कॉल्ड एज व्हाट इज ब्रांच ऑफ इकोनॉमी। व्हाट इज का मतलब जो है, व्हाट इज क्या है। इट टॉक्स अबाउट द थिंग्स हैपनिंग और माइट हैपन इन द इकोनॉमिक वर्ल्ड, यानी कि जो चीजें हैं और जो होंगी वो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में है। तो इसमें कोई भी ऐसी कंसेप्ट नहीं है जिसके लिए आर्ग्यूमेंट्स आए। Come to the normative economics. When I talk about the normative economics, it focuses on the value of economic fairness or what the economy should be. Economics को क्या मतलब, economics में क्या होना चाहिए था. It gives value judgment about things and tells us to what should have happened, what ought to be, what should be. तो सबके अपने अपने वैल्यू जजमेंट्स हो गए, क्या होना चाहिए था, कैसे होना चाहिए था। तो ये सब चीजें क्या है बेटा, नॉर्मेटिव कॉन्सेप्ट्स। नाउ देखो, पॉजिटिव में ऑब्जेक्टिव है, टेस्टेबल थ्योरी है, नॉर्मेटिव में जजमेंट है, ओपिनियंस है। Now when we talk about the positive and normative economics, we can see certain examples here. Positive में देखिए, it seeks to understand behavior without making judgment about outcomes. About outcomes. That is, does a currency devaluation fuel inflation? Are oil prices contributing to a GDP slowdown? Disposable income has declined by 15% over the past 4 years. When disposable income falls, the demand for own labels supermarket food rises. Raising tax on beer will have a negative effect on the profit of brewers. Higher interest rates will tempt house prices. ये सब पॉजिटिव हैं, ऑलरेडी द डेटास आर देयर, यू कैन चेक देम आउट whether they are true or false. So we can check them whether the statements are true or false because the data are available. But when we talk about the normative economics, it is analyze outcomes of economic behavior, evaluates them as good or bad, or sometimes
prescribes a course of action. That is, we can say that it is wrong, it is false, or it is good. In this, we have just a view, we have just an opinion. We cannot we cannot test it whether the statements are true or false. Higher education should be free. Should alternative fuels be subsidized? We must try to boost disposable income. Basic health care to all citizen should be free. ये सब ओपिनियंस हैं कि वो चाहते हैं कि हेल्थ केयर जो है सब बेसिक बेसिक मतलब यानी कि छोटी मोटी बीमारियों से उन सब चीज़ों के लिए फ्री हेल्थ केयर होनी चाहिए. अनएम्प्लॉयमेंट इज मोर हार्मफुल फॉर देन इन्फ्लेशन. अनएम्प्लॉयमेंट इन्फ्लेशन से भी ज़्यादा हार्मफुल है. अब ये कौन, इसे आप क्या, कोई कहेगा अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा हार्मफुल है, कोई कहेगा इन्फ्लेशन ज़्यादा हार्मफुल है. So different people have different views. The minimum wage should be raised by 20%. अब कोई कहेगा 20%, कोई कहेगा 30%. Market mechanism should be allowed to work freely in order to make sure resources are best allocated. Alcohol consumption should be controlled by enforcing minimum prices for alcoholic beverages sold in supermarket. So these are certain statements what are given which can be true, which can be false, but we cannot test them. It is just showing the people's opinion that what they want the economy should do for the betterment and for the development. So this is the positive and normative issues. If you want, I can take some more examples for normative and positive economics. That is one. I'm giving an example, a very simple example to make it clear. That is, India's population has crossed 100 crores. India is the second large populated country in the world. This is positive or normative? It's positive because datas are there, we can search them, we can read them, and we can justify our statement that India is the second populated country. But if I talk about India should not allow its population to grow so fast, it must control its population. So this becomes normative because what I am talking about that India should not allow, यानी कि इंडिया को अलाउ नहीं करना चाहिए कि पॉपुलेशन इतनी रफ्तार से बढ़े. अब नहीं अलाउ करना चाहिए तो वी कैन फोर्स द पीपल, वी कैन जस्ट कन्विंस द पीपल, we can just make the programs for them to aware, make them aware. We can tell them the small family is good for them. So this is the opinion, so it becomes a normative economics. One more example I can take, that is workers will work hard if they are given more wages. Workers will work hard if they are given more wages. It's good, we accept it. And we can see also, if the incentives are given in private companies, the incentives are only given to those who gives more turnover to the company. So it is acceptable. If a person is working hard and if he is given incentives or he is given more wage, it is acceptable. But when I talk about factories should increase the wage rate of workers to provide justice for hard work, that is again a normative. That is again, it is an opinion that company or factory should. Why? So it is again an opinion of the people and it becomes normative. So this is what we have done in this chapter. Once again, we wind up with the topic, that is what is economics. We have seen that economics in the time of duration, in different duration, we have seen that Hello, we hello. have seen that economics in the change of durations have changed a lot, from the wealth to welfare, from welfare to scarcity, from scarcity to growth and development. And at present scenario, we all countries all over the world is working to sustain the environment for the development. So this is the most important topic nowadays, what everyone is working for, to sustain the environment along with the development,
so that the next generation would like to have or use the resources as they like to, as we are doing. So we have done the micro and macro concept, as well as we have also done the normative and positive aspects of the economy. Thank Thank you. you. Thank Thank you. you. Thank you, sir.